Okay. Good morning, student. Today you come here to study one of the important topic of sexual reproduction in flowering plant. As we know, we discuss about the sexual reproduction in flowering plant. In sexual reproduction, what is important that it is important that is the fusion of male and female gametes. So, in case of that particular sexual reproduction, fusion of male and female gamete is very important. Without that, the sexual reproduction cannot get proceed. And here you say that male gametes produced by pollen grains, and pollen grains are produced inside the anther lobe of stamen. तो पोलन ग्रेन तो एंथर लोब के अंदर तैयार होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स विच आर प्रोड्यूस विद इन दी ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर तैयार होते हैं एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी आर विद इन दी ओवरी, ये ओवरी के अंदर है. एज यू टेकन द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लावर, अगर हम लोग फ्लावर की बात करें, so this one is nothing but the gynoecium, so this is the stigma, so you can say that this one is nothing but a stigma, this is actually the style, this one is nothing but the ovary, and inside that there should be the presence of ovule. तो ये है यहाँ पर ovules, और ये ovules के अंदर है egg, that is a female reproductive organ. फिर यहाँ पर this one is nothing but the thalamus, ये तो thalamus हो गया. Here there should be the presence of stamen, यहाँ पर stamens है, this one is nothing but the stamen. अगर ये stamen है तो यहाँ पर pollen grains going to be produced, तो यहाँ पर तैयार होते हैं pollen grains. देखो, what you observe that pollen grains are produced inside the anther lobe and egg which is produced here, egg यहाँ पर है. So both are present at a different place, दोनों अलग अलग जगह पे हैं. And what is the sexual reproduction? Sexual reproduction is nothing but the fusion of male and female gametes. That means the male partner, that is the pollen grains, and this particular egg, that means the male and female gamete, they should get fused together. That means they have to come close together. दोनों को फ्यूज होना है, इसका मतलब दोनों को एक साथ आना पड़ेगा. दोनों एक साथ आने के लिए ये जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स को एक के कांटेक्ट में आना है. इसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू स्टिग्मा, क्योंकि दिस पर्टिकुलर ओव्यूल विच आर प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज नथिंग बट द स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा गेट रेजेस बाय स्टाइल. दैट मीन्स this particular non-motile pollen grains are not motile, or that particular male gametes they are not itself get motile, वो खुद नहीं मूव होते. egg which is also non-motile one, दोनों non-motile है, मेल गैमेट भी non-motile है, फीमेल गैमेट भी non-motile, यानी वो खुद नहीं जा सकते. इसका मतलब उसको लेके जाना पड़ेगा, कोई तो लेके जाएगा. so here you say that what we can say, what is the meaning of this particular pollination? So we can say that pollination, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. सिंपली कैन से दैट the transfer of pollen grain, ये जो pollen grain यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, that particular pollen grain should get transport over the stigma. यहाँ के pollen grain निकल कर यहाँ पर अगर fall down होते हैं, that process is called as pollination. So what is the pollination? Pollination is nothing but the transfer of pollen grain from anther to stigma. Anther to stigma, transfer of pollen grain. तो पोलन ग्रेन मूव होंगे, स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन होंगे, दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज स्टिग.
सिंपली यू कैन से दैट दिस वन इज नथिंग बट अ पॉलिनेशन। इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑन दी सेम फ्लावर आर विदिन दी सेम फ्लावर of plant. Transfer of pollen grain from anther to stigma within the same flower of the plant. उसी प्लांट के उसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होना, और within the two different फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स, इनके बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होना, और इसको और अगर हम बड़ा कर सकते हैं, और विदिन दी टू डिफरेंट फ्लावर्स of different plants of same species। एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट, उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होना, और within the flowers, within the two different flowers are different plant species are varieties। दो अलग अलग वेराइटीज या दो अलग अलग स्पीसीज, उनके बीच में भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेशन। उसको भी हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली सीखे, अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें, सो वी कैन draw such type of that particular diagram. I will draw all that particular diagrams here, you just observe that. So this one is nothing but one of that pedicel is there, here there should be a presence of thalamus, so this one is nothing but the thalamus, ये thalamus है, this one is nothing but the pedicel, ये pedicel है, इस thalamus के ऊपर है gynoecium, so this one is nothing but the gynoecium, ये है gynoecium, ये है ओवरी, ये है स्टिग्मा, ये है हमारा स्टाइल। यहाँ पर इसके बाजू में मैं निकालता हूँ अभी पोलन स्टेमेन्स, सो दिस वन इज नथिंग बट द स्टेमेन, तो ये तो हो गया स्टेमेन। यहाँ पर रहने वाले पोलन ग्रेन्स, तो यहाँ पर है पोलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, यहां पर देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये जो पॉलिनेशन होता है, इसके कुछ टाइप्स भी है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इसी के आधार पे है। सो आई विल ड्रा हियर दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं जरा इसी के साथ साथ। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पहला है उसमें फर्स्ट वन सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, लुक एट दिस व्हाट आई ड्रॉन हियर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द से, एक ही फ्लावर के अंदर, इसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो टाइप्स हैं। पहला टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, और दूसरा टाइप होता है जिटैनोगैमी। वन ऑफ द टाइप दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी एंड अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड एज
gitanogammy. Both are the type of that particular same cell pollination, and the another type of the pollination is nothing but the cross pollination. तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार ए और ये है बी क्रॉस पॉलिनेशन के। इसमें हम लोग लिखेंगे जेनोगैमी, जेनोगैमी, और यहां पर है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में दो प्रकार। देखो ये जो एक ही मैंने डेफिनेशन लिखा है यहां पर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट। यहां तक के ये जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज ऑफ द ऑटोगैमी। यहां पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन within same flower of plant। उस एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो, जैसे यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक पेड़ निकाले, सो दिस वन इज नथिंग बट वन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। यहाँ पर लीव्स है और यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है फ्लावर, तो ये है फ्लावर। सो दिस वन इज नथिंग बट ए फ्लावर। ये फ्लावर का है पेडिसेल, ये फ्लावर का पेडिसेल, यहाँ पर थैलेमस है और यहाँ पर है गाइनोइशियम, यहाँ पर है स्टेम, यहाँ पर है कैलिक्स, करोला, इन दिस। सो दिस वन इज नथिंग बट द प्लांट ए। अब इसको हम लोग नाम देंगे प्लांट ए। यहाँ पर ये फ्लावर है, तो यही के पोलन ग्रेन निकलकर अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ये हो गया ऑटोगैमी। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक प्रकार है। दूसरा इसमें, इसी में अब दूसरा निकालते, मान लीजिए दिस वन इज नथिंग बट अनदर फ्लावर। ये एक दूसरा फ्लावर है, यहाँ पर भी थैलेमस है, यहाँ पर अभी है गाइनोइशियम, दिस वन इज नथिंग बट गाइनोइशियम इज देयर, स्टिग्मा इज देयर। So this one is nothing but a gynoecium। यहाँ पर अब मैं निकालता हूँ स्टेम है, यहाँ पर है कैलिक्स, करोला, एंथोसियम एंड गाइनोइशियम इन दिस। सो दिस वन इज नथिंग बट द, ये है फ्लावर 1, ये है फ्लावर नंबर 2, फ्लावर 2। अब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस स्टेमेन टू दिस पर्टिकुलर स्टिग्मा। अब यहाँ पर अगर ये वाले स्टेमेन से पोलन ग्रेन निकलकर अगर यहाँ पर फॉल डाउन होते हैं, तो ये जो प्रकार है दैट वन इज कॉल्ड जिटैनोगैमी। इसे हम लोग कहने वाले हैं जिटैनोगैमी। ये है जिटैनोगैमी। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन द सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट, यहाँ पर आएगा टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। उस ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है, तो वो हो गया जिटैनोगैमी। यहाँ पर देखो जैसे ये फ्लावर 1 है, फ्लावर 2 है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम सेकंड नंबर फ्लावर टू फ्लावर नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एज जिटैनोगैमी। ये है जिटैनोगैमी। तो यहाँ पर देखो आप, इन दोनों ही प्रकार में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन द सेम प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन सेम प्लांट। उस एक ही प्लांट के अंदर अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है, कहीं पर भी देखो, अगर इसी के इसी में हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, या यहाँ पर ये फ्लावर का फ्लावर उधर वाले इसमें जा रहा है, दोनों ही केस में प्लांट तो एक ही है, एक ही प्लांट के ऊपर अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, तो वो हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बेस्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑटोगैमी का बेस्ट एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। ऑटोगैमी में एग्जांपल पी वाटाना, मटर पल्ली। जिटैनोगैमी में हम लोग बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कुकुम्बर, काकड़ी, कुकुम्बर, मेज,
अब जो दूसरा प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन, सेम यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन तो होगा, लेकिन इसमें अब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पर आप देखिए जरा दूसरे डायग्राम में, जैसे मान लीजिए दिस वन इज नथिंग बट द प्लांट नंबर 1, ये है प्लांट 1 ए, यहाँ पर लीव्स है। अब यहाँ पर आ गया फ्लावर, तो ये है फ्लावर, फ्लावर के ऊपर है ये थैलेमस, ये थैलेमस, ये पेडिसेल है, यहाँ पर है गाइनेशियम, ऐसा गाइनेशियम, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे स्टेमेन, और यहाँ पर कैलिक्स और करोला, ये तो कैलिक्स और करोला। सो दिस वन इज नथिंग बट द फ्लावर नंबर 1 एंड दिस इज द प्लांट ए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, इसके ऊपर दे सकते हैं हम लोग, ये है पपैया प्लांट, पपैया। अब ये पपैया का जो प्लांट है दिस वन इज नथिंग बट सपोज दैट दिस इज द मेल पपैया प्लांट, ये मेल पपैया प्लांट। अब यहाँ पर दूसरा फ्लावर निकाल, दूसरा प्लांट निकालते हैं, प्लांट नंबर बी, ये है फीमेल पपैया प्लांट। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो दिस वन इज नथिंग बट द लीव्स, यहाँ पर भी एक फ्लावर है, दिस वन इज नथिंग बट द थैलेमस। In this particular thalamus stigma, 5 stigma is there. So this one is nothing but the stamen. These all are the stamen. This one is nothing but the calyx and corolla is there. Here you see that. This one is nothing but the plant number B. ये plant number B है. ये भी papaya का ही plant है. Same plant. This is also papaya plant. This is also papaya plant. But this one is nothing but the female plant. This is the male plant. Here there should be a presence of only, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अगर फीमेल पपैया प्लांट है, that means here there should be an only presence of gynoecium, यहाँ पर सिर्फ gynoecium होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें this one is nothing but a female papaya plant, that means here only presence of androecium, यहाँ पर androecium है, क्योंकि यहाँ पर मेल फ्लावर, this one is nothing but the male flower and this one is nothing but the female flower, ये तो female flower है। दो अलग अलग फ्लावर है लेकिन प्लांट एक ही है और वो प्लांट है पपैया प्लांट। नाउ हियर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लुक एट दिस। हियर व्हाट इज हैपेंड दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन द सेम प्लांट हो रहा था, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन द टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज ज़ेनोगैमी। और है आखिर में हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा तो डिफरेंट प्लांट में होगा, लेकिन वो दोनों प्लांट एक ही स्पीशीज के नहीं होंगे या फिर वो अलग अलग वेराइटी का होंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, यू कैन सी दैट। सपोज दैट दिस वन इज नथिंग बट वन ऑफ द राइस प्लांट, ये एक राइस प्लांट। अब ये अगर राइस प्लांट है, आपको मालूम होगा राइस प्लांट में बहुत सारे वेराइटीज है। जैसे मैं भी इसको लिखता हूँ, दिस पर्टिकुलर राइस प्लांट इज नथिंग बट द HMT प्लांट। अब एक दूसरा राइस प्लांट बनाते हैं हम लोग, ये अगर राइस प्लांट है, ये आपको मालूम होगा चिन्नूर नाम का प्लांट है, काटे चिन्नूर बोलते उसको। इसमें आप अगर देखेंगे काटे चिन्नूर में ये सेंटेड राइस होता है, सेंटेड। और यहाँ पर HMT का अगर ग्रेन देखेंगे तो छोटा होता है, वो सेंटेड नहीं है। अब ये दोनों ही राइस प्लांट है, ध्यान देने वाली बात है, बोथ आर राइस प्लांट, ये दोनों ही राइस प्लांट है, बट दोनों की वेराइटी डिफरेंट है, वेराइटी डिफरेंट, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स। अब मान लीजिए यहाँ पर दिस वन इज नथिंग बट डी, यहाँ पर कोई फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, यहाँ पर गाइनेशियम है, यहाँ पर स्टेम है, कैलिक्स है, करोला, जो भी है वो। यहाँ पर भी सेम ऐसे निकालते हैं हम लोग। दोनों में प्लांट सेम है पर वेराइटी डिफरेंट है, दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट है। एक छोटा ग्रेन है, एक जो है छोटा है लेकिन वो सेंटेड है, एक में सेंट नहीं है, तो दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है। अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम HMT राइस प्लांट टू दिस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लांट, तो दोनों प्लांट तो सेम है लेकिन दोनों की वैरायटी डिफरेंट है। अब इन दोनों में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, दैट पॉलिनेशन यू कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग प्लांट होते हैं, दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है, इन दोनों के बीच में अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, दैट फोर्थ टाइप इज नथिंग बट दी हाइब्रिडाइजेशन। दोनों सेम प्लांट है, वो एक ही स्पीसीज के हैं, उसमें अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, दैट वन इज नथिंग बट द ज़ेनोगैमी, वो ज़ेनोगैमी हो गया। अब अगर इन दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे, दिस टाइप इज नथिंग बट, ये जो डायग्राम में बनाया है दैट इज नथिंग बट दी हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो पहला वाला जो डायग्राम बनाया था, सो दिस वन इज नथिंग बट दी ज़ेनोगैमी, ये है ज़ेनोगैमी। तो ज़ेनोगैमी हैव बीन कैरिड आउट विद इन द पपाया प्लांट, and this cross pollination have been carried out, or this particular hybridization have been carried out in many our crop plants, in cotton plants also, in other plants also, many plants. So cross pollination इसमें होगा, transfer of pollen grain within the same plant था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे within the different plants, यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट के बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा। So this is the concept of that particular pollination. In sexual reproduction, we know that fusion of male and female gamete is very important one, but the male gamete get produced within the anther lobe, and the female gamete get produced within the egg or within that particular ovule. Ovule is a female reproductive part which is present inside the ovary, and anther lobes or anthers are one of the part of that particular stamen. Both are different, both are present on the different location. So fusion, that means they should get come close together, and here is that the pollen grain are non-motile and egg which is also non-motile. That means they have to bring close together. So here is that for that purpose transfer of pollen grain is necessary, and transfer of pollen grain get carried out in two different types. One of that particular type which is called as cell pollination, and another type that is called as cross pollination. Whatever it may be the type is there, but the transfer of pollen grain should get very important one. And whenever that particular pollen grain get fall over the stigma, that ends the pollination. Now how that particular pollination or how that particular pollen grain get transferred, वो pollen grain जाते कैसे हैं, which agents they transfer that particular pollen grains, क्योंकि pollen grain वो तो खुद नहीं जा सकते क्योंकि वो नॉन मोटाइल है, अब वो जाएंगे कैसे, कौन लेके जाएगा इन्हें। So for that purpose there are two different agents works, agencies of pollination हम लोग जैसे कहेंगे, तो there are two different agents are there that may transfer the pollen grain. यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन क्या कौन कौन करता है, एजेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को कन्वर्ट करने के लिए, पॉलिनेशन को करने के लिए दो एजेंसीज है या दो एजेंट्स है। वन ऑफ दैट एजेंट इज नथिंग बट दी अबायोटिक एजेंट एंड अनदर वन इज बायोटिक एजेंट। दो अलग अलग एजेंट्स दैट ट्रांसफर दैट पॉलिनेशन एजेंट्स, और यू कैन से दैट एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कितने एजेंसीज हैं, तो पॉलिनेशन के दो एजेंट्स हैं। वन ऑफ दैट एजेंट इज नथिंग बट दी अबायोटिक एजेंट्स एंड द अनदर एजेंट इज नथिंग बट दी बायोटिक एजेंट। ये दूसरा है बायोटिक एजेंट, बायोटिक। अबायोटिक एजेंट दैट इज द नॉन लिविंग एजेंट, नॉन लिविंग। कोई भी जैसे एयर है, वाटर है, हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है। हमें देखो वो कौन लेके जा रहा है पोलन ग्रेन, इससे मतलब नहीं है हमारे, तो ये मतलब है कि पॉलिनेशन होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होना जरूरी है। तो मोड ऑफ पॉलिनेशन या वो बायोटिक एजेंट से हो या अबायोटिक एजेंट से, उससे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन वो होना जरूरी है। तो वन ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट इज नथिंग बट दी अबायोटिक एजेंट and another agent is nothing but the biotic agent. In this particular biotic agent, different insects है, flies है, birds है, कुछ mammals है, snail है, there are so many agents. These are nothing but a living agent that may transfer the pollen grain. But one thing we have to listen that when transfer of pollen grain get carried out by non-living agents, at that particular time these flowers are so simple, or this particular pollen grain they could not having, or that particular flower could not having any scent, could not having any fragrance, because they cannot have to attract any pollinating agents towards them. उन्हें मात्र किसी को भी किसी भी pollinating agents को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि उनके pollen grain तो नॉन लिविंग एजेंट से जा रहे हैं।
लेकिन अगर आप एक बात ध्यान दें, इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर बायोटिक एजेंसी जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स है, फ्लाइज है, बर्ड्स है, मैमल्स है, स्नेल है, बीज है, ये अगर पॉलिनेटिंग एजेंट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन करते हैं तो उन्हें इन एजेंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो फ्लावर को, वो पेड़ को, उन सारे एजेंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को बड़ा और डेकोरेटिव होना जरूरी होता है। फ्लावर दे हैव टू प्रोड्यूस द फ्रेग्रेंस, उन्हें फ्रेग्रेंस तैयार करना जरूरी होता है, उन्हें शुगरी सब्सटेंस तैयार करना जरूरी होता है, दैट यू कॉल्ड एज द नेक्टर। एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, दे पजेसेस insect pollination, and you see that insect pollinated plants or biotic agent pollinated plant, they possesses more decorative flower, and in case of abiotic agents where the transfer of pollen grain get carried out by water and air, a very less number of that particular plant they possesses the aquatic pollination, or you can say that the water pollination. Only near about the 30 genera they possesses the aquatic pollination or the water pollination, and this particular water pollination which is called as hydrophilic. Air pollination is called as anemophilic air pollination. Air pollination which have been carried out by many monocots in many grass plants. Measure our crop products just like as wheat, rice, jawar, in that family Poaceae or Gramine, major plant they going to access such a type of that particular air pollination, and insect pollination get carried out in many dicot plants. In case of this particular insect pollination, when flowers are so small, these flowers they are not singly attractive at that particular time. All such a small flower, they come close together, they forming the natural cluster of flower, and that natural cluster of, in this particular abiotic thing, if flowers are small, अगर वो flower बहुत small है, छोटा है, that means inconspicuous, at that particular time वो बहुत छोटा फ्लावर किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए इन दैट केस द फ्लावर्स आर स्मॉल, दैट मींस द इनकॉन्स्पिक्यूअस, इन दैट केस दे फॉर्म्स natural cluster of flowers, natural cluster of flowers, and this particular natural cluster of flower is called as inflorescence. So here is that the flower is the most fascinating organ which have been evolved or which have been produced for the pollination. In majority of that particular flower, you found that many flowers get born in a cluster, and that particular cluster, natural cluster of flower, you call as inflorescence. So inflorescence which may going to help for to carry out the biotic pollination or by the insect pollinated plants. Such a type of that particular variously different kinds of inflorescence we can observe. So the next part of this particular chapter we can learn on the next day. Thank you.